તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 2 દિવસની જાપાનની મુલાકાતે પહોંચી ચૂક્યા છે। ત્યારે જાપાનમાં ભારતીય મૂળના લોકોએ પીએમ મોદીનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું હતું। આ સાથે જ ભારતીયોએ જય શ્રી રામના નારા પણ લગાવ્યા। જાપાનમાં પીએમ મોદી અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન, જાપાનના પ્રધાનમંત્રી અને ઓસ્ટ્રેલિયાના નવનિયુક્ત પ્રધાનમંત્રીની સાથે મુલાકાત કરશે। 40 કલાકમાં વડાપ્રધાન 23 થી વધુ બેઠકો કરશે। તો ટોક્યોમાં 40 કલાકના રોકાણ દરમિયાન જાપાનના 35 જેટલા બિઝનેસ લીડર્સ અને સીઈઓને પણ મળશે। ક્વાડ મીટિંગ સિવાય નરેન્દ્ર મોદી અને યુએસના પ્રમુખ જો બાઇડન ટોક્યોમાં દ્વિપક્ષીય બેઠક કરશે, જેના કારણે જાપાન સાથે વેપારિક સંબંધોમાં જે છે તે વધારો થશે, વેપારિક સંબંધો વધુ સુધરશે। દ્વિપક્ષીય બેઠકના અંતે યુએસના પ્રમુખ જો બાઇડન અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જે બેઠક કરશે તેમાં મહત્વની ચર્ચા કરવામાં આવશે। તો આ મુદ્દે રશિયા અને યુક્રેનમાં જે 2 મહિનાથી વધુ સમયથી જે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે તે અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ક્વાડ સમિટ 2022માં ભાગ લેવા માટે હાલમાં જાપાનના ટોક્યો ખાતે પહોંચી ચૂક્યા છે, કે જ્યાં ભવ્યાતિ ભવ્ય તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। ભારતીય મૂળના લોકોએ તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું હતું। તો જય શ્રી રામના નારા આજે જાપાનમાં પણ ક્યાંક ગૂંજી ઉઠ્યા હતા। બાળકો સાથે પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મુલાકાત કરી અને વાતચીત કરી હતી અને જાપાન જે ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે ખૂબ જ આગળ માનવામાં આવે છે તેમના મુદ્દે અનેક મહત્વના કરાર થવાની પણ સંભાવના। જાપાનના પ્રધાનમંત્રી સાથે પણ તેઓ મુલાકાત કરવા જઈ રહ્યા છે। જાપાનની રાજધાની ટોક્યો ખાતે જ્યારે તેઓ પહોંચ્યા ત્યારે ભવ્યાતિ ભવ્ય તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। જ્યારે એરપોર્ટ પર ખાસ તેઓ પહોંચ્યા હતા તો જાપાનની ભૂમિ ઉપર નમો નમો ગુંજી ઉઠ્યું હતું। શ્રી રામના નારા લાગ્યા હતા। જય શ્રી રામના નારા સાથે જે ભારતીય મૂળના જે લોકો છે તેમણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી હતી, અભિવાદન ઝીલ્યું હતું। તો બાળકો પણ તેમને મળવા માટે, તેમનો ઓટોગ્રાફ લેવા માટે પહોંચ્યા હતા। 4 અલગ અલગ દ્રશ્યો જ્યારે જાપાનની ભૂમિ ટોક્યોના એરપોર્ટ પર તેઓ પહોંચ્યા અને એક તરફ ભવ્યાતિ ભવ્ય સ્વાગત અને ઓટોગ્રાફ લેવાનો પ્રયાસ। वाह पांचवी कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छा। जापान में आपका बहुत स्वागत है। वाह May I have your signature? May I have your signature, please? तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? Yes, I learned. हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह वाह। और जापानी में क्या लिखा है? Same here. Same. और ये हिंदी 3 में। भाषा लिख दी। मोदी जी। साइन कर दीजिए। बार बार वंदन, हजारों बार अभिवंदन। मोदी जी आपका टोक्यो में अभिनंदन। I met Modi for the first time and I was very happy. I met him for the first time very close and we are proud of Modi. उनने कुछ नहीं पूछा पर आशीर्वाद मजा आया दिया और ऑटोग्राफ दिया। My name is Ritsuki. Okay, Rizuki. So, which class you are studying in? I'm studying in Global Indian International School, and I'm from grade 5. તો બાળકો પણ કેટલા આનંદિત દેખાઈ રહ્યા છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પહેલીવાર મળ્યા, તેમની માટે ખાસ કેટલીક પંક્તિઓ પણ તેમણે લખી હતી। જાપાનની આ મુલાકાતથી વેપારિક રીતે, સામાજિક રીતે ભારતને કેટલો લાભ થશે અને યુએસના પ્રમુખ સાથે પણ જ્યારે તેમની મુલાકાત છે તે કેટલી લાભકારી। અમારી સાથે અજય યાદવ દિલ્હીથી અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। अजय, जिस भी देश में जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी वहाँ के ही जैसे हो जाते हैं, वहाँ के बच्चे हों, बुजुर्ग हैं, सब उनको खूब ही अच्छी तरह से उनका स्वागत करते हैं। उनके लिए पंक्तियाँ भी बच्चों ने लिखी थी। कितना लाभकारी रहेगा ये 2 दिन का प्रवास? देखिए, निश्चित तौर पे काफ़ी लाभकारी रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जापान की यात्रा पे जा रहे थे उससे पहले ही उन्होंने अपने संबोधन में एक तरह से कहा था कि भारत और जापान के बीच नहीं बल्कि क्वाड के जितने भी देश हैं उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी और ख़ास करके अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है वो मजबूत होंगे और द्विपक्षीय वार्ता होने की वजह से जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो भी मौजूद होंगे, व्यापारिक रिश्ते भी सुधरेंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जापान पहुंचे तो उनका न सिर्फ भारतीय समुदाय के द्वारा भव्य स्वागत किया गया, बल्कि जो जापानी लोग थे
उनके द्वारा भी स्वागत समारोह किया गया। भारतीय समुदाय के द्वारा भारतीय शेर कह के उनका उनके आगमन का एक तरह से स्वागत किया गया। लेकिन कुछ जापानी स्टूडेंट भी थे, बच्चे भी थे, उनके द्वारा जब पोस्टर देखा गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पास गए, उन बच्चों के पास, उनको ऑटोग्राफ भी दिया। खास करके टूटी फूटी हिंदी में बातचीत भी वो बच्चे करते हुए नजर आए। लेकिन जापान दौरे की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के दौरे पे गए हुए हैं। 40 घंटे वहाँ पे रहेंगे। 23 से ज़्यादा छोटी बड़ी बैठकें करेंगे, जिसमें 4 बजे, आज 4 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भारतीय समुदाय को संबोधित किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापानी प्रधानमंत्री के इन्विटेशन पे गए हुए हैं। 4 देशों का एक तरह से ये पूरी बैठक है क्वाड की, जो न सिर्फ हिंद महासागर बल्कि प्रशांत महासागर का जो समन्वय बैठक है इन चारों देशों के लिहाज से, उसमें एक रणनीतिक गठजोड़ बढ़ाने के लिहाज से काफ़ी अहम मानी जा रही है। इसमें न सिर्फ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन, उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के नवगठित एक तरह से जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होगी और जापान के साथ भी ये बैठक होगी। तो एक तरह से न सिर्फ क्वाड किस तरह से आगे बढ़ेगा, उसकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बातचीत होगी, बल्कि जिन देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी उनसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिहाज से भी ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। एक और लिहाज से ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है कि एक तरफ जहां रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है, ऐसे में भारत के जो संबंध हैं सभी देशों के साथ लगभग प्रगति के भी दिखाई दे रहे हैं। जो रसिया के साथ हैं या जो रसिया के खिलाफ है, तो उन सभी के साथ भारत के संबंध भी मजबूत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे अमूमन जो चाइना के विरोधी देश हैं उनकी बैठक एक तरह से हो रही है। क्वाड का गठन भी इसी लिहाज से किया गया है। जी बिल्कुल अजय, जिस प्रकार से क्वाड के हिसाब से ये बैठक को महत्व की मानी जा रही है, लेकिन ये भी अहवाल प्राप्त हो रहे हैं कि जापानीज जो कंपनीज है उसके 32 जितने CEO है, जो 32 अलग अलग कंपनियों के CEO हैं, 40 घंटे के अंदर अलग अलग कार्यक्रमों में और उनके साथ वो बैठक करने जा रहे हैं। उससे व्यापारिक क्षेत्र से भारत को कितना फायदेमंद माना जा रहा है ये तमाम जो जापानीज कंपनी है उनकी CEO की मुलाकात? देखिए, निश्चित तौर पे काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके पहले भी जब जापान के प्रधानमंत्री जो मौजूदा अभी हैं वो जब आए हुए थे तो 5 लाख करोड़ का मामूली ऋण पे एक समझौता हुआ था, जापान की तरफ से सहयोग देने की बातें की गई थी। तो कुल मिला के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों तक रहने वाले हैं या 40 घंटे तक रहने वाले हैं, उसमें 23 बैठकें अधिकतर जापानी जो उद्योगपति हैं और अलग अलग जो सांस्कृतिक समूह हैं उनके साथ होने वाली है। तो व्यापारिक रिश्ते के लिहाज से जापान तो हमेशा भारत के लिए मुफीद रहा है, और जब भी जापान भारत का जो सहयोग बढ़ता है तो उस जापान की तरफ से काफ़ी कम कर्ज में, यहाँ तक कि जो बुलेट ट्रेन भी बन रही है वो काफ़ी कम कर्ज में लोन भी मुहैया कराता है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में बहुत सारा जो निवेश है वो जापान की तरफ से किया गया है। और इस बार जब क्वाड सम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं तो जापान के प्रधानमंत्री के स्पेशल इन्विटेशन पे गए हुए हैं, तो निश्चित तौर पे जापान के साथ भी बहुत सारी द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी जो भारत के हित में होगी। तो इस लिहाज से कहा जा रहा है कि ये जो दौरा है भारत के लिहाज से काफ़ी मुफीद है, और खास करके चाइना के साथ जो टसल चल रही है हिंद प्रशांत महासागर को लेकर के, उस लिहाज से भी ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। जी धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।